Hello students, welcome back to the online class, and today we are going to continue our exercise 3.4 from question number 2. So as we see that our question number 2 is totally based on word problem. So there are 5 parts in question number 2. So let's start with the part first. Part first said that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only added 1 to the denominator. What is a fraction? So as I told you earlier that we have two objects in every question. Here in this question we have two factors, or you can say that two objects. One is numerator and another is denominator. These two factors, or you can say that these two objects make our fraction. So let's start with question number 2 part first. Okay, so question said that if 1 is added to the numerator and subtract 1 from the denominator. So we do not have numerator and denominator. So first of all, let us assume numerator is equals to x and denominator equals to y. Therefore, fraction becomes x upon y. जब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन सेड 1 इज we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. अगर क्या किया जाए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जाता है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 किसमें से? डिनोमिनेटर में से. तो इट्स रिड्यूस टू 1. सो दिस इम्प्लाइज दैट x plus 1 is equals to y minus 1. ठीक. So this is also be written, this can also be written as x minus y is equals to minus 1 minus 1. This one is transposed to the right side and y is transposed to left side. So finally we get x minus y is equals to minus 2. This is our equation number 1. Okay. Now what is the condition second? The condition second is it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator, which means there is no change in numerator, only we have to add 1 in the denominator and the fraction becomes 1 upon 2. Okay. This is our condition first, and now condition second. न्यूमरेटर बिकम्स अनअल्टर्ड. अनअल्टर्ड मतलब जो बदले ना. एंड डिनोमिनेटर में क्या करना होगा? 1 ऐड करना होगा. देन इट बिकम्स 1 अपॉन 2. ओके. नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 2x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बाय क्रॉस. वैसे जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लिख दोगे आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ही अच्छा होगा.
So by cross multiplication 2x is equals to y plus 1. Okay, so this can also be written as 2x minus y is equals to 1. Now this is our equation number 2. ठीक, अब क्या है ना, बेसिकली हमको दोनों इक्वेशन तो यहाँ मिल गए, है ना। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एग्जिस्ट तभी करेगा ना जब ये कंसिस्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको जो है इसके इक्वेशन मतलब इसके रूट्स को सॉरी इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 is equals to 0। ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे। वी गेट a1 क्या मिलेगा हमको, a1 b1। देखो यहाँ पे ना ये मैंने इधर इक्वल करके लिखा है, तो अभी ये जनरली मैं यहाँ लिखने को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लिखो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो a1 b1 और c1 तीनों आपको यहाँ दिखेगा, 1 माइनस 1 और प्लस 2। ठीक है, तो a1 इक्वल 1, b1 इक्वल माइनस 1 एंड c1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंपेयर करना, इक्वल 0, यहाँ एक वर्ड और जोड़ देंगे रेस्पेक्टिवली, है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड बाय दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है इक्वेशन 1 को इससे और इक्वेशन 2 को इससे, है ना। रेस्पेक्टिवली को हिंदी में जिसको आप क्रमशः लिखते हैं, है ना, उसी को इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। सो a1 इक्वल इतना, b1 इक्वल इतना एंड c1 इक्वल 2। ठीक, एंड इसी तरीके से a2 b2 एंड c2 भी हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड क्या करना है, यहीं से कंपेयर करके निकाल लेना है। इसको अगर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, यानी 2 माइनस 1 और माइनस 1, 2 माइनस 1 और माइनस 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 और माइनस 1। ठीक, 1 माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 और माइनस 1, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2, यह है 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 है minus 1 upon minus 1. This is also equals to 1. So here we see that we have a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, which means given pair of
linear equations have यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का, उसमें क्या, उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मतलब ये कंसिस्टेंट हो रहा है, यानी अब हमको उसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा था ना कि इफ दे एग्जिस्ट, है ना, तो यहाँ से तो पता चल गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक बच्चों, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सो नाउ दिस इज द टाइम टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपने जो दोनों इक्वेशन हमें मिले थे, दोनों इक्वेशन को पहले हम एक साथ लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड equation number 2 is 2x minus y is equals to 1, that is 2x minus y is equals to 1. So here we have to use the elimination method. तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिख देंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। और सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सबको पता है ना, हम एक बार रिवाइज भी कर देते हैं, लिख दें पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि मैंने बताया था ना, जब पहला काम तो कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट इक्वल करते समय अगर हमको साइन भी, जो वेरिएबल हमको एलिमिनेट करना है उसका साइन भी अगर इक्वल मिलता है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज वी हैव टू ऐड द इक्वेशंस। ओके, सो हियर वी सी दैट द coefficients of both coefficients in both equation, coefficient of y is equal, already equal, and also their signs are equal, so we have to subtract these equations. So by subtracting we obtain that the sign of every sign of, or you can say that sign of every term of the equation number 2 will change. Okay, this is not positive, this is negative. Okay, this one is negative, so here there is no use of this sign. अब इस साइन का कोई यूज़ रह नहीं गया। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 2x अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ओके, एंड हियर दिस इज नथिंग, -1 -2 दिस इज इक्वल्स टू -3। ठीक, तो क्या हो गया, -x is equals to -3, so this means that कि x is equals to 3 plus x is equals to +3. Now put this value in either equation. either equation मतलब आप किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ ये तो नहीं लिख सकते कि इन ईदर इक्वेशन। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर आप पुट करते हो तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, यानी 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3। ठीक, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, सो वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो x की वैल्यू मतलब न्यूमरेटर भी हमको मिल गया, डिनोमिनेटर भी मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड fraction is 3/5. या required fraction x upon y is 3/5. And now this is your final answer of first part of question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old
आर नूरी एंड सोनू। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं ना 5 साल पहले, अब यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हमको मिल गए, कौन कौन, नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की थ्राइस थी, ठीक। ये 5 साल पहले की बात कर रहा है कि नूरी जो थी वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू थी, सोनू का 3 गुना उम्र था। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 3 साल बाद क्या होगा कि ट्वाइस, नूरी जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू हो जाएगी, दुगनी रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यहाँ एक चीज़ और लिखना चाहिए था, नाउ, ठीक है, अभी कितने उम्र के हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, नूरी की एज को x मान लेते हैं, और दूसरा कौन है, सोनू को मान लेते हैं y। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम प्रेजेंट एज को x और y मानेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी equal x and the present age of सोनू इज इक्वल्स टू वाई, है ना। ईयर्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना वाई ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज हमने मान ली। अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट क्या कहता है, ओफो 3 ईयर, 3 साल पहले, सॉरी 5 ईयर, सॉरी पहले केस में 5 ईयर एगो कहता है, 5 ईयर एगो। एज ऑफ नूरी क्या होगा, 5 साल पहले 5 साल छोटी रही होगी, 5 साल उम्र में से इनके कम कर दो, वो है x माइनस 5 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 5। ये तो 5 साल पहले की केवल उनकी उम्र है, ठीक है। अभी ये एक दूसरे से कुछ रिलेट नहीं किए हैं, अब रिलेट करने जा रहे हैं, है ना। सो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ ना लिख के, पहले हम केस फर्स्ट लिखे थे ना, इसको भी यहाँ से हम रिमूव ही कर देते हैं, यहीं लिखते हैं, यहाँ ज़्यादा सटीक बैठेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले, है ना, बुक सामने रख लेते हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी ये हैं नूरी और ये हैं सोनू, ठीक। और नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, या x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, दिस कैन ऑल्सो बी नोटेड एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ये 3 साल का लोचा पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ रहा था, 5 साल और 10 साल है, तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नूरी
अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोग यहाँ इसको स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं, नूरीज एज, सोनूज एज, है ना, जिनको ग्रामर की ज़्यादा जानकारी है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस 10, क्योंकि आज तो उम्र x है, 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। और सोनू भाई की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। ये तो इनकी 10 ईयर के बाद की एज है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। ये जो 10 साल बाद वाली उम्र है दोनों लोग की, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हैं नूरी, सॉरी, और ये हैं सोनू। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, नूरी x प्लस 10 और सोनू y प्लस 10, बहुत अच्छे, है ना। और क्या है, ये दुगने हैं, तो मतलब क्या हुआ, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, यानी x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ ऊपर से नहीं उड़ना चाहिए किसी को, ये मत कहना नहीं समझ में आया, समझा दे रहा हूँ। 2y को इधर ट्रांसपोज किया, प्लस में था, माइनस में हो गया, 20 को इधर ट्रांसपोज किया, प्लस में था, वो भी माइनस में हो गया। जब इधर सब लोग चले गए तो इधर बचा 0, ठीक है। तो x माइनस 2y माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्शन विद ग्रेटर नंबर साइन, ठीक। 20 माइनस 10, 10 बचेगा, ग्रेटर नंबर 20 है, इसलिए इसका साइन लग गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस में 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों, अब फिर से वही काम, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड इक्वेशन 2 बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, वी गेट, आपको a1 b1 c1 मिल जाएगा, है ना। यहाँ एक चीज़ और जोड़ना हम लोग लिखना भूल गए, रेस्पेक्टिवली, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है भाई, ये लिखना ज़रूरी है ना, क्रमशः, मतलब पहले वाले को इससे, दूसरे वाले को इससे। नहीं भी लिखोगे यहाँ चल जाएगा, जैसे पहले लिखे थे, अगर वैसा लिखोगे तो रेस्पेक्टिवली लिखना ज़रूरी होगा। a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ठीक है। तो a1 b1 c1 के लिए तुम्हें पेज पलटना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, a2 b2 c2 लिख लेते हैं। a2 है 1, b2 है -2 और c2, इससे मत करना, इससे करना, c2 है -10, ठीक। अभी a1 b1 और c1 हमको यहाँ से मिल जाएगा 1 -3 और 10, 1 -3 और 10। अब यहाँ तक का प्रोसीजर मैंने समझा दिया है, आगे का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे है। आप पहले चेक करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये इनके बीच में कैसे माहौल हैं, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट करेगा या पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इनका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक, तब तो ये कंसिस्टेंट होंगे और हमें फाइंड करना पड़ेगा, और अगर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, तो हमको खोजने की ज़रूरत नहीं है, हम साफ साफ लिख देंगे द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो सॉल्यूशन, ओके। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब अपना पार्ट 3 भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3 पढ़ें तो हम क्या देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था, है ना, वही चीज़ यहाँ पलट के आई है, लेकिन वहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, यहाँ इसको हमको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट के नंबर की बात इसने की है, तो अगर नंबर 2 डिजिट का है तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बताया कि 2 फैक्टर या 2 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ भी आपको 2 कंपोनेंट मिलेंगे। 2 डिजिट का नंबर है, पहला कंपोनेंट होगा डिजिट्स एट यूनिट प्लेस और दूसरा कंपोनेंट होगा डिजिट एट टेंस प्लेस। भाई 2 डिजिट का नंबर तभी तो बनेगा जब इसमें 2 डिजिट होंगी। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे अब ये 25 है, तो 25 बना कैसे है, 20 + 5 से। अब 20 + 5 को और भी अच्छे से लिखना हो तो 2 × 10 + 5 लिख सकते हो। 43 लिखना है तो इसको 4 × 10 + 3 लिख सकते हो। ठीक है, 98 लिखना है तो इसको आप 9 × 10 + 8 लिख सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 451 अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 400 + 50 + 1। और अगर इस तरीके से लिखना चाहो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो 4 × 100 एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, 5 × 10 + 1। अब इतने से तो हमारा IQ लेवल काम कर जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, हो ये रहा है कि हम जानते हैं ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, वंस टेंस और 100 होता है। तो जिसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको उससे मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है। जैसे 9 टेंस प्लेस पे है तो 9 × 10 लिख दिया गया, 1 नहीं लिखा गया, 1 निरीह जानवर है ना, निरीह प्राणी है, 1 कहीं जल्दी लिखा नहीं जाता जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि 8 का मतलब 8 × 1 ही है, तो 9 × 10 + 8 × 1। ठीक, अब यहाँ जब 100 प्लेस की बात आ गई तो 100 प्लेस पे 4 था, इसलिए 4 × 100 + 5 × 10 + 1। इसको बताने के पीछे मेरा और कोई दूसरा लॉजिक नहीं था। अभी इस टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी हमको अपने पार्ट नंबर 3 पे। तो आपको कह रहा है ना, बुक में देखिए अपने क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स कह रहा है ना, जो 2 डिजिट का नंबर है उन दोनों डिजिट का सम क्या है, 9 है। अब वो 4 5 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, 1 8 भी हो सकता है, 7 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का सम क्या है, 9 है। तो हम ऐसे तो किसी को लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x and the digit at ones place be y। ठीक, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको x मान लिया और जो वंस प्लेस पर डिजिट है उसको y मान लिया। तो भाई अब अगर हम ऐसे हमको कोई बताता कि टेंस प्लेस पर 9 है और वंस प्लेस पर 7 है तो हम तो ऐसे चट से लिख देते 97। लेकिन अगर बता रहा है टेंस प्लेस पर x है, वंस प्लेस पर y है, तो हम इसको xy थोड़े लिख सकते हैं। xy का तो मतलब होता है x × y। ठीक है, तो उस हिसाब से तो 9 7 या 63 हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यही जानने के लिए हमने ये इतना ऊपर वाला कांड किया था। टेंस प्लेस पर x है और वंस प्लेस पर है y, तो इसको लिखेंगे कैसे, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये बेचारा खुद ही आएगा, उसमें ऐड कर देंगे। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 10x + y। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, तभी उसकी पूरी औकात निकल के सामने आएगी, मतलब उसकी पूरी वैल्यू निकल कर तभी सामने आएगी। ठीक है, तो क्या है, टेंस प्लेस पर डिजिट है x और वंस प्लेस पर है y,
सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा टेंस प्लेस पे जो है उनको 10 से मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस वाला ऐसे लिख दिया। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ना अगर क्या कह ही रहा है कि जो है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी 26 अगर था पहले तो पलट के 62 कर दो, यानी कि आफ्टर रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने का मतलब क्या, जो वंस पे था वो टेंस पे, जो टेंस पे था वो वंस पे। तो आफ्टर रिवर्सिंग द न्यू नंबर या आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x चला जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्या कह रहा है जरा पढ़ें फिर से। कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। किसी 2 डिजिट के नंबर की डिजिट्स का सम 9 है, यानी इन दोनों का सम 9 नहीं है, ये तो नंबर लिखा हुआ है पूरा पूरा, है ना। इन दोनों का सम 9 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1 तुरंत बना दिया, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन और क्या कह रही है, कहाँ गया ये, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है उसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस होगा उसकी डिजिट को रिवर्स करने पर, ठीक है। ये था हमारा केस फर्स्ट। केस सेकंड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा सीरियस है, ठीक। केस सेकंड ये कहता है कि 9 टाइम्स, ठीक है, दिस नंबर मतलब दिस नंबर 10x प्लस वाई, ठीक है, 9 टाइम्स 10x प्लस वाई, है ना, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, इसके दुगने के बराबर होगा, ठीक। 2 इंटू 10y प्लस x। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड केस था, सॉल्व हो गया, है ना। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो रास्ता मिला है, बाईपास सर्जरी अभी इसकी बाकी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 को घुसाओ अंदर, 9 10 जा 90x प्लस 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस 2x, है ना। अभी केस का कॉम्प्लिकेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक। अब केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं आया, कोई कांस्टेंट नहीं मिला, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से क्रॉस चेक करना बनता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार, नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, बस तब ठीक है, तब गाड़ी हमारी सही रास्ते पे है। क्या करेंगे, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट 90x सीधा लिखते हैं माइनस 2x को इधर ले आए, प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। कायदे से पूछिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि पहले ही कह दिया है कि एलिमिनेशन से लगाओ तो वो हमारी मजबूरी है। 90x माइनस 2x अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, बहुत मिलेगा, 88x मिल जाएगा, ठीक। प्लस लगाएं कि माइनस, बन गई दुविधा, वो इसलिए क्योंकि 9y है छोटा और 20y है बड़ा, तो अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्शन विद ग्रेटर नंबर साइन, तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमको माइनस और लिखना पड़ेगा 11y इज इक्वल्स टू शिफर जो है उर्दू में 0 को बोलते हैं, ठीक है, शून्य बोलते हैं हिंदी में। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करो, अगर आप 11 ले लो कॉमन तो हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, हमको ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर
सेकेंड। ठीक, अब फिर से वही पहले कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, और उसके बाद देखेंगे अगर एग्जिस्ट करता है तो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर नहीं करता है तो हम फाइंड नहीं करेंगे, लिख देंगे सिंस द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, तो इस तरीके से आज 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और बाकी बचते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगले वीडियो में आप लोग अगर कहेंगे तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर आप खुद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स ट्राई, नो नॉट अस ट्राई, ओनली यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कम्प्लीटली बाय योर सेल्फ। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, 2 में मैंने हिंट कर दी, इक्वेशन बना के दे दिया। ठीक है, और 4th और 5th क्वेश्चन जो है वो आपको अपने से करना है, नहीं करेंगे तो मुझे बताएंगे, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बनाकर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार भी न रहे आप लोग के लिए। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।